Okay, okay. So hi guys. So this will be a demo session on firmware and embedded system. So we are gonna see like what this field is about. Like this is a part of electronics. We are gonna explore what this field like is really about, what it does and all. So the session will be session is divided into two parts. So one will be like discussion on the role of firmware or embedded engineer in the semiconductor industry, right? And the second will be that is one of the most important topic in our embedded world. That is the memory layout. So this will be the second topic, right? So this is kind of today's agenda for this discussion. And my medium of communication will be both English as well as Hindi. I hope it's okay with you guys, right? Okay. Mm, Okay. Okay. So coming like being an electronics engineer, so like we like I wondered like what are the roles available like if I want to join a semiconductor industry. So kind of you guys also might wonder like what are the roles open to you once you like if you are from an electronics background. So let's just explore what are the roles available first. सो फॉरेन इलेक्ट्रॉनिक्स गाय तो हमारे पास दो रोल्स मेनली होते हैं. वन इज द हार्डवेयर रोल, दैट इज द प्योर हार्डवेयर जहाँ पे हम लोग वीएलएसआई पढ़ते हैं, चिप डिजाइन, चिप टेस्टिंग, वेरिफिकेशन, दीज ऑल आवर प्योर हार्डवेयर, राइट? बट इस हार्डवेयर को चलाने के लिए हम लोग को कुछ सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है. देयर कम्स आवर सॉफ्टवेयर रोल्स. और इन इंजीनियर्स को हम लोग फॉर्मवेयर और एम्बेडेड इंजीनियर्स बोलते हैं. So this is more or less the division which we have, like कैसे एक हार्डवेयर काम करता है और उस हार्डवेयर को चलाने के लिए क्या सॉफ्टवेयर काम करता है. So next, going like we like now understanding, like we want to have a better understanding. uh, what does a firmware engineer actually does? ये करते क्या है, इनका काम क्या है? So just the firmware engineers, so ye they write some dedicated codes for the working of the hardware. ठीक है. अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कुछ कुछ हार्डवेयर है, जैसे हम लोग जो ब्लूटूथ चलाते हैं, जैसे कोई वाईफाई चलाते हैं. सो ये ब्लूटूथ वाईफाई इन सारे, ये ब्लूटूथ क्या करता है, दो डिवाइसेस के बीच कनेक्शंस करता है. जैसे आपका फोन है, आपका एक हेडसेट है जो ब्लूटूथ से कनेक्टेड है. अब ये जो कनेक्शंस, जो कम्युनिकेशन हो रहा है, दो हार्डवेयर है, दो हार्डवेयर का प्रोसेसर्स है, तो इन प्रोसेसर्स के बीच में कुछ कम्युनिकेशन होगा तभी तो ब्लूटूथ कनेक्ट होगा आपके फोन से हेडसेट में. तो ये इसके लिए कोई डेडिकेटेड कोड लिखा जाता है कि जिससे ये कनेक्शंस हो, या हम फिर जब हम ऑडियो पैकेट सेंड करते हैं, या हम कभी कभी सुनते सुनते हम कभी कभी ऑफ करना चाहते हैं, तो ये डेडिकेटेड कोड जो लिखते हैं तो उनको ही हम लोग फर्मवेयर इंजीनियर्स बोलते हैं. एंड दिस होल फील्ड इज कॉल्ड एज द फर्मवेयर फील्ड, राइट? सो काइंड ऑफ दिस डायग्राम समवॉट एक्सप्लेन्स अस कि क्या होते हैं. जो हमारा चिप है, सो वो चिप को काम करवाने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, चिप हमारा कोई भी चिप हो सकता है. इट कैन बी अ चिप in our phone, it can be a chip in any of the electronic gadgets we use in our daily life, right? So वो chip को काम करवाने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, that is the firmware, right? So that is, so again, so the firmware engineers, so they write codes that commands the microchips, thus bridging the gap between the hardware and the software. And firmware engineers को like what are the main skills they have to they have to cultivate within themselves. एक होता है हमारा, they have to be master of low level language जो mainly हमारा embedded C बोलते हैं. And second is the chip architecture. उनको पता होना चाहिए कि chip मतलब माइक्रो प्रोसेसर, चिप, ये सब आर्किटेक्चरली कैसे काम करता है. नाउ और एक चीज, जैसे यहाँ पे बोला गया है कि लो लेवल लैंग्वेज, राइट? सो व्हाई embedded C or like kind of C programming is used in this embedded world? Because C programming is the most hardware friendly language, right?
सो मशीन जो हमारे डिवाइस हार्डवेयर होते हैं, सो दे अंडरस्टैंड असेंबली लेवल लैंग्वेज, राइट? और सी लैंग्वेज को पहले कन्वर्ट किया जाता है असेंबली लेवल लैंग्वेज में, which then is like understood by the hardware. So we can see that C is the most hardware friendly language, right? And the embedded world is mainly on C or maybe C++. Okay, so let's move on. Okay, so now coming to this thing, like what actually, like again we want to explore like embedded engineer, firmware engineer, ये दो terms हम बार बार use कर रहे हैं, तो क्या ये दो same है, और is there any difference between the two? So उसके लिए like the firmware engineers, so embedded engineers भी कुछ कोड लिखते हैं जो एक particular devices के लिए होता है, but उनमें थोड़ा सा difference होता है. That is, unlike firmware, embedded software operates more like application software on PC. तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा और डिटेलिंग में जाएंगे, so we'll understand it better. So the firmware usually sits between our microprocessor and the hardware components, right? Converting the incoming data into something the processor can understand, क्योंकि हमारा processor is the brain of the device, right? That is the main which dictates the device what to do, what not to do. So this firmware actually ये बैठता है अपने हमारा microprocessor और hardware के बीच में. It is mainly responsible for their communication. जैसे पिछले हम लोग एक एग्जाम्पल से समझे थे कि ब्लूटूथ डिवाइस में वहां पे भी क्या हो रहा था, दो जैसे हमारा कुछ हार्डवेयर है, हमारा माइक्रो प्रोसेसर है चिप के अंदर, हमारे फोन के अंदर, तो वहां पे कम्युनिकेशन कुछ करना है कि कैसे ब्लूटूथ कब ऑन करना है, कब कब हम अपना जो की देते हैं ना, जो हम पास की देते हैं टू कनेक्ट टू अदर, तो वो कब डालना है, ये सब कुछ कौन हैंडल करता है? दिस ऑल इज थिंग इज हैंडल्ड बाय दीज फर्मवेयर गाइज, राइट? So the firmware in one hand, as it converts the incoming data into something that the microprocessor can understand, similarly वो ये भी करता है कि माइक्रोप्रोसेसर जो कमांड्स देना चाहते हैं हार्डवेयर को, राइट, कि क्या करना है इसके बाद, तो वो भी ये फर्मवेयर इसको इसको कन्वे करते हैं. So the firmware also converts the microprocessor commands into signals which the hardware components understand, right? ये तो हमको समझ में आ गया कि फर्मवेयर क्या है, पर अभी दूसरा टर्म जो हम यूज कर रहे हैं वो है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, राइट? सो द एम्बेडेड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स मोर ऑफ अ हायर लेवल फंक्शनलिटी सच एज यूजर इंटरफेस. तो हम थोड़ा ऐसे समझ सकते हैं कि फर्मवेयर फर्मवेयर इज मोर रिलेटेड, लाइक वो थोड़ा हार्डवेयर से कनेक्टेड ज्यादा है, और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर जो है वो थोड़ा ज्यादा सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड. बट अगेन both of these आर रिटन फॉर controlling or for dictating a particular device, right? So the distinction between firmware and the embedded guys, the work of the embedded guy is admittedly fuzzy at times and can vary from device to device. But the bottom line is that together they make the digital device do what they are supposed to do. तो इसीलिए ना, जैसे बड़े बड़े जो कंपनीज होते हैं, जैसे क्वालकॉम आप ले लो, माइक्रॉन आप ले लो, तो वहां पे ना एक अलग से एक रोल खुलता है जो होता है अपने फॉर्मवेयर इंजीनियर्स. दे राइट लाइक दिस रोल इज फॉर फॉर्मवेयर गाइस, बिकॉज उनको ज्यादा चिप चिप फ्रेंडली होना है, मतलब उनको चिप का नॉलेज, उनको हार्डवेयर का नॉलेज रहना है. पर वैसे कुछ कुछ छोटे कंपनीज भी होते हैं जो इन दोनों टर्म्स को लाइक इंटरचेंज करते हैं, लाइक दे यूज बोथ द टर्म्स फॉर द सेम रोल, राइट? But yes, so there is this minute slight difference, but it again varies from company to company, right? So हाँ, but technically इसमें थोड़ा सा different चलो next. ओके, सो दिस इज मोर और लेस एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि एक्चुअल में अगर हम प्योर टेक्निकल टर्म्स में बोले तो कैसे काम होता है. सो दिस वन, एम्बेडेड कोड सेंड्स कमांड्स टू द फर्मवेयर कोड एनेबल्स इंटरेक्शन विद द हार्डवेयर, और ये अपना हार्डवेयर है.
सो ये लेयर बाय लेयर कैसे हमारा डिवाइस के अंदर कैसे काम होता है, कोड्स कैसे काम करते हैं, उसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम बोल सकते हैं. ओके. ओके, चलो, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट. वी हैव नाउ रैप्ड अप आवर फर्स्ट पार्ट, दैट इज अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली में ये एम्बेडेड वर्ल्ड या फर्मवेयर वर्ल्ड किससे डील करते हैं, क्या है. आप अगर एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो तो आपके लिए ये रोल में जाने के लिए आपको क्या क्या जानना पड़ता है, ये रोल है क्या, जो बहुत ज़रूरी है. आप अगर आप इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो आपके लिए जरूरी है जानना कि क्या रोल्स में क्या किया जाता है. Right, as you must be as you are aware of the hardware rules, you should also keep some knowledge of these roles also, because then your options to get into these companies widens up, right? ओके. तो हमारा जो एज वी डिस्कस्ड इन द एजेंडा ऑफ दिस सेशन, तो हमारा जो सेकेंड पार्ट होगा, दैट विल बी अ सेशन, दैट विल बी अ डिस्कशन ऑन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक कंसेप्ट होता है जो हर कोई एम्बेडेड इंजीनियर को मास्टर करना पड़ता है, दैट इज आवर मेमोरी लेआउट. तो ये होता क्या है, क्या तो वो हम देखते हैं. Okay, so yeah. So coming to this part, what is actually memory layout और firmware engineer क्या करते हैं इनमें? So for a firmware or embedded engineer, mastering memory layout is essential because their role involves writing and managing low-level code that interacts with the hardware, right? तो ये फिर से वो एक ही बात आ जाता है, क्योंकि फॉर्मवेयर या एम्बेडेड इंजीनियर्स को डायरेक्टली हमारे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर से डील करना पड़ता है. तो हमारे माइक्रो प्रोसेसर में लिमिटेड एरिया, लिमिटेड मेमोरी होता है, राइट? पर ये लिमिटेड मेमोरी में ही ये फॉर्मवेयर इंजीनियर्स का रोल है टू पुट ऑन मैक्सिमम ऑफ द फंक्शनलिटी, ताकि हमारा डिवाइस ज्यादा से ज्यादा फंक्शंस दे पाए. पर वही लिमिटेड एरिया में उनको, लिमिटेड मेमोरी स्पेस में उनको ज्यादा से ज्यादा कोड लिखना है. तो वो कैसे करेंगे? इफ दे हैव अ गुड नॉलेज ऑफ दिस मेमोरी लेआउट, देन दे कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग हाउ दे कैन डू दिस, राइट? So firmware engineers work closely with the processor's memory architecture, right? Which includes understanding how different types of memories such as RAM, ROM, cache are organized and accessed. तो इनको बहुत ज्यादा इसमें फोकस रखना पड़ता है कि कैसे मेमोरी आर्किटेक्चर क्या है, उनको इसका भी नॉलेज रखना पड़ता है. ठीक है. सो नेक्स्ट. Please, please increase the volume, ma'am, please. सॉरी. If volume is very less, ma'am, I think. ओके ओके ओके. Is इज it इट from ओके? my side or? Okay, okay. Now, okay, ma'am. So could you listen the previous lectures, like session, uh, like last time, like previous slide, was it clear? Um, can I get a response, please? It is better some more volume, ma'am. Actually, could you hear the previous slides? I just want to clarify this thing. Okay, okay, okay. You can hear, Sorry. right? Okay, Okay, it's okay. okay, okay, na? Okay, ठीक है. Cha- Please like interrupt me whenever there is this audio problem, because from my side No, I can't audio, understand. audio is audio is very perfect, ma'am. But volume, अच्छा अच्छा, आप बता देना, मतलब जब वॉल्यूम का प्रॉब्लम हो ना, क्योंकि मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा है कब वॉल्यूम लो okay, हो रहा है. ओके, मे बी okay, ड्यू टू इंटरनेट इशू. okay. It is better some more volume, but check आई it हैव once, please. लाइक Thank you. डन द Okay, मैक्सिमम. हाँ ठीक है, चलो okay, okay. कंटिन्यू. No ओके. problem, no problem. Continue. ओके. So we were discussing this memory layout, right? So again, so why this is important? So again, the two most important point, like why it is important to understand the memory layout and all. So this ensures that the program run efficiently and do not exceed memory limits, which can lead to system instability or crashes. तो ऐसा होता है जब हम कोई कोड लिखते हैं ना, सो इट्स लाइक thousands of lines code. सो अगर
किसी जगह देर इज दिस मेमोरी, देर इज दिस, वी आर नॉट मच कॉन्शियस ऑफ द मेमोरी, राइट? तो वहां पे ना मेमोरी लीक्स होते हैं, राइट? दैट कैन कॉज द होल ऑफ द कोड flow to crash, right? So it's just very, like at that time, like to find out कहाँ पे वो memory leak हुआ है, क्या नहीं हुआ है. So it becomes a very cumbersome like work for the engineers who are working on this code. तो उनको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, like they have to be very careful कि from the first, like they to be very careful of the memory, like कैसे use हो रहा है, where they are placing which elements and all, right? So, firmware often includes code that directly manipulates the memory address and controls hardware components. Knowing the memory layout allows engineer to write precise instructions that interact correctly with the processor and peripheral devices, right? So firmware engineers, they often like use this pointers, right? तो वहां पे pointers में हम लोग क्या store करते हैं? हम लोग address store करते हैं. तो यही यही बताना है, लाइक मेमोरी एड्रेस स्टोर करते हैं. तो उन, सो दे हैव टू गेट दिस नॉलेज ऑफ मेमोरी, मेमोरी में कैसे हम लोग एड्रेस स्टोर करेंगे, कहाँ पे कौन सा एड्रेस स्टोर करेंगे. सो दीज 2 पॉइंट्स अगेन वो सेम चीज को ही बोल रहे हैं कि क्यों मेमोरी लेआउट इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने फॉर्मवेयर या एम्बेडेड वर्ल्ड, राइट? ओके, moving on. So yeah, this diagram, as we can see, so this diagram is a pictorial representation of our virtual memory. तो जो वर्चुअल, सो एक्चुअल में हमारे जो प्रोसेसर के अंदर जो मेमोरी होते हैं, तो उनको हम लोग वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं, राइट? सो दिस वर्चुअल मेमोरी में हम लोग अपना सारा जो कोड्स हम लोग जो लिखते हैं, सो दीज कोड्स गेट स्टोर्ड इन द वर्चुअल मेमोरी. अब कैसे स्टोर होता है, क्या कहाँ पे स्टोर होता है, यही हम लोग पढ़ने जाएंगे. So if we talk about this memory, so this memory is broadly divided into some sections. So the bottommost section is the text segment, right? And above that section is our data segment. अब data segment itself is again divided into two, right? एक होता है हमारे initialized data segment और एक होता है हमारा uninitialized data segment, right? अब ये क्या चीज है? तो initialize, as the name suggests, so this is the segment where the variables of which we have initialized the value of the variable that gets stored. और अनइनिशियलाइज, जैसे नाम ही बोलते हैं, तो जो वेरिएबल का वैल्यू हम लोग इनिशियलाइज नहीं कर रहे, हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे उन वेरिएबल्स को, तो वो आके बैठ जाता है इधर, राइट? अनइनिशियलाइज डेटा सेगमेंट. और इसको बीएसएस सेगमेंट भी बोलते हैं, ठीक है? और एक चीज है कि क्योंकि इसमें हम लोग कोई अपने से वैल्यू नहीं दे रहे, तो ये ना ऑटोमेटिक इट गेट्स इनिशियलाइज टू जीरो. हम जब भी इसको जब कोई इनिशियलाइज नहीं कर रहे, तो ये ऑटोमेटिक जीरो वैल्यू ले लेते हैं अपने आप में. और इसके ऊपर, सो हमारे बॉटम मोस्ट था टेक्स्ट सेगमेंट, उसके ऊपर हमारा आ जाता है डेटा सेगमेंट. उसको छोड़ के और दो सेगमेंट्स होता है, एक होता है अपना हीप, एक होता है अपना स्टैक. इसमें हमको याद रखना है कि हीप एंड स्टैक, दे ग्रो इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, राइट? हीप, हीप किस लिए यूज होता है? सो हीप is used when we are dealing with dynamic memory allocation, right? While stack किस लिए use होता है? Stack when we are dealing with static memory allocation. So we'll learn more about these in details, how heap is working, how stack is working. But this is an overview how the memory actually looks. Processor के अंदर कैसे memory actually होता है, correct? So moving on. Uh, Okay, so here is some terms which we need to understand. So as I showed you in the last slide, so the bottommost segment was our text segment, right? So this contains the machine code of the compiled program. ठीक है, जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो फर्स्ट वो प्रोग्राम कंपाइल्ड होता है, उसके बाद रन होता है, राइट? द फर्स्ट स्टेप, लाइक आफ्टर आई राइट द प्रोग्राम, द फर्स्ट स्टेप इज दैट it should be compiled. So compilation में क्या होता है? The code which we are writing get converted to machine code.
ठीक है, when we compile the program gets converted to machine code and this machine code gets stored in the text segment. क्लियर है कि ये जो मशीन कोड में कन्वर्टेड हो गया पूरा कोड, ये हमारा स्टोर होता है अपने टेक्स्ट सेगमेंट में। ठीक है, दैट इज द बॉटम मोस्ट सेगमेंट। नेक्स्ट उसके ऊपर आता है हमारा डेटा सेगमेंट, जिसमें फिर से दो डिविजन है। हमने हमने देखा था एक डिविजन, द one is that initialize data segment. So what is it? Initialize data stores all the global, static, constant and external variables declared with the extern keyword, right? तो हमारे जो ग्लोबल वेरिएबल है, जो स्टैटिक या कांस्टेंट, हम लोग इसको, ये जो हम लोग एक कीवर्ड यूज करते हैं। जैसे हमको कोई ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हम क्या करेंगे, उसको स्टैटिक या कांस्टेंट ऐसा कुछ कीवर्ड से हम के बाद हम लोग वो वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, राइट? तो आप लोग को शायद आइडिया होगा ये क्या होता है। लाइक ग्लोबल वेरिएबल्स आर वेरिएबल्स विच होल्ड देयर वैल्यू थ्रू आउट दैट प्रोग्राम, राइट? मतलब प्रोग्राम जब तक चलेगा वो अपना वैल्यू को, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि कोई फंक्शन में हम एक एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू दे रहे हैं, तो व्हेन द फंक्शन एंड्स, दैट इज व्हेन वी एनकाउंटर द रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो मतलब क्या है कि फंक्शन एंड हो गया। when the function ends, the all the values stored in the variables gets erased off। मतलब वो मेमोरी पूरा क्लियर हो जाता है। पर जब हम लोग, अब हम कोई दूसरे फंक्शन में, अब हम दूसरे फंक्शन में वो फंक्शन वन के वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि जब फंक्शन वन खत्म हो गया तब उसके अंदर सारे वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स के वैल्यू इरेज्ड ऑफ हो गए। पर अगर हम कोई ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करें, स्टैटिक वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, तो हमारा फंक्शन खत्म हो सकता है, फंक्शन वन खत्म हो सकता है, पर वो सारे वेरिएबल्स, स्टैटिक, ग्लोबल, उनके अंदर जो वैल्यू है इट रिमेन्स एज इट इज, वो स्टोर्ड रहता है, ताकि हम दूसरे फंक्शन में भी वो फंक्शन वन के जो ग्लोबल वेरिएबल्स, जो स्टैटिक वेरिएबल्स है, उनके वैल्यूज को एक्सेस कर सके। करेक्ट? सो दिस इज व्हाट लाइक ग्लोबल, स्टैटिक, कांस्टेंट। और जो हमारा एक्सटर्न वेरिएबल्स है, तो हम लोग जो कोड लिखते हैं तो वी राइट, एक प्रोजेक्ट में हम लोग मल्टीपल सी डॉट सी फाइल्स होता है, राइट? तो ये जब हमको एक डॉट सी फाइल में हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, पर हमको वो सेम वेरिएबल दूसरे डॉट सी फाइल में चाहिए, तब हम ये एक्सटर्न कीवर्ड लगाते हैं। that time we put this extern keyword, right? So the value which is updated in one .c file also shows up, also we can access that same value in another .c file, इसलिए हम लोग ये keyword extern use करते हैं, right? So this is what it is. So again, like coming back to our discussion, so initialize data segment में, so ये global, static, constant, extern, these type of variables are stored, right? And they are initialized beforehand. And data segment is not read only. It can be initialize read only or initialize read write area। ठीक है, तो जैसे डेटा सेगमेंट में, अगेन डेटा सेगमेंट में फिर से दो डिविजन हुआ, इनिशियलाइज, अनइनिशियलाइज। और एक डिविजन होता है, एक होता है कि रीड ओनली एरिया, एक होता है कि रीड राइट एरिया। रीड ओनली एरिया में हम लोग, वी आर ओनली अलाउड टू रीड, राइट? एंड रीड राइट एरिया में we are allowed to manipulate the values of those variables, right? We can update the value, we can that is the thing, we can write, also rewrite the values। okay, so so I hope it is like a clear now। so initialize data segment क्या बोल, हम लोग क्या इससे कोड क्या समझता है initialize data segment में। फिर से like again coming to the definition, uninitialized data segment, so this again called BSS segment। so data in this segment is initialized to arithmetic zero। so ये automatically अरिथमेटिक जीरो से इनिशियलाइज हो जाता है, क्योंकि हम लोग
किसी कोई वैल्यू से को इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली अरिथमेटिक जीरो से इनिशियलाइज हो जाता है बिफोर द प्रोग्राम स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग. Uninitialized data starts at the uninitialized data starts at the end of the data segment and contains all the global variable, static variable, extern. ये सेम ही है. मतलब देखो, इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट में जो हम लोग जैसे ग्लोबल, स्टैटिक, कांस्टेंट स्टोर करते हैं, हम लोग अनइनिशियलाइज में भी ग्लोबल, स्टैटिक, कांस्टेंट स्टोर करते हैं. पर डिफरेंस क्या है इन दोनों में? इनिशियलाइज में हम लोग ये वेरिएबल्स में अपने से वैल्यू दे देते हैं, पर अनइनिशियलाइज में we don't put values to this variables, right? So yeah, and they are, so that's why they are like by default they are initialized to zero, correct? Okay, and they do not need explicit initialization in the source code. Okay, now moving on. Okay, now coming to the coming like we now have now we understood the two parts, right? मेमोरी सेगमेंट का दो पार्ट हम लोग को समझ में आ गया. द बॉटम मोस्ट जो हमको हमारा टेक्स्ट सेगमेंट है, उसके ऊपर जो हमारा डेटा सेगमेंट है. डेटा सेगमेंट खुद में फिर से दो में डिवाइडेड है, एक अनइनिशियलाइज और एक इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट. अब आता है और एक पार्ट जो हमारा हीप, राइट? हीप. और heap is the segment so where the dynamic memory allocation usually takes place, right? When some more memory is needed to be allocated using malloc and calloc function, heap grows upwards, right? So जब भी हमको डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करना पड़ता है, डायनामिकली मतलब जब प्रोग्राम ऑलरेडी रन कर रहा है उसके बीच में हमको मेमोरी एलोकेट करना पड़ रहा है, दैट टाइम दैट इज वी आर डायनामिकली एलोकेटिंग मेमोरी, राइट? तभी हमारा हीप दैट टाइम्स द कंसेप्ट ऑफ हीप कम्स, राइट? But what stack? But for stack segment is used to store all the local variables and is used to pass the arguments to the function along with the return address of the instruction, which is to be executed after the function call is over. All recursive function calls are added to the stack. तो हम थोड़ा एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को. सो एज आई सेड, हीप क्या होता है? जो हम लोग डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं. तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप ट्रेन में चढ़ रहे हो, ठीक है? तो आपके पास टिकट नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप ट्रेन में चढ़ के व्हेन द ट्रेन इज रनिंग, वो रन टाइम में है, तब आप टीटी से बात करके यू आर डायनामिकली गेटिंग अ टिकट, राइट? सो वो रन टाइम में आप एक टिकट ले लिए और अपने ट्रेन में एक स्पेस रिजर्व कर लिया आपने. So that is, I am during the run time, I am getting the space, I am reserving the space. Similarly, ये भी कोड जब रन कर रहा है, रन के बीच में ये अपना मेमोरी ले रहा है, ठीक है? तो दैट्स वाई द नेम इज, इट्स डायनामिकली मेमोरी ले रहा है, तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन. बट आप ये सोचो, आपके पास टिकट है, आप ट्रेन में चढ़े, आपका ऑलरेडी स्पेस, आपका ऑलरेडी सीट रिजर्व्ड है, दैट इज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, जो स्टैक डील करता है जिसको, ठीक है? सो यही है मेन डिफरेंस. आपको नाम से भी समझ में आएगा कि हीप ऑलवेज डील्स विद द डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, बट स्टैक it deals with all the static memory allocation. और इस सिंपल से एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझ भी सकते हैं और रिलेट भी कर सकते हैं, कैसे डायनामिक मेमोरी कैसे एलोकेट होता है और कैसे स्टैटिक मेमोरी, ठीक है? बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज दैट स्टैक एंड हीप ऑलवेज grows in opposite direction, right? So the stack and the heaps are located at opposite ends of the processor's virtual space, right? Okay, so moving on. uh, okay, so next अब हम like now we'll try to understand the concept of stack, heap, initialize data segment, text segment through a simple code. अब हम कोड से समझने वाले हैं. My voice is clear, right?
आप लोग को सुनाई दे रहा है ना? uh, I'm audible, right? Rajat, am I audible? Hello? Yeah, tell me. Is Yeah, it am over? I? Yeah, yeah. No, no. Am I audible? Like, I'm Yes, not. yes, yes. You Oh, are not. okay, fine, fine. Thank Okay. you. Yeah. Okay. Okay. So next, like, we are gonna understand the date, the memory segments through a simple code. ठीक है? तो फर्स्ट लाइन 2 और लाइन 3 में हम लोग देख रहे हैं हैश इंक्लूड stdio डॉट एच और हैश इंक्लूड std lib डॉट एच। तो ये दोनों क्या, व्हाट आर दीज? सो इसको हम लोग प्री हैश इंक्लूड को हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बोलते हैं। ठीक है? सो व्हेन वी आर राइटिंग हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, इसका मतलब हम लोग कंपाइलर को पहले ही बोल रहे हैं टू कि ये जो stdio डॉट एच, इसको हम लोग हेडर फाइल बोलते हैं। जो डॉट एच फाइल होता है ना, तो दोज आर द हेडर फाइल्स। तो इन हेडर फाइल्स में कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस ऑलरेडी दे आर स्टोर्ड, some library functions, some predefined functions are already stored। तो हम ये लाइन 2 और 3 से हैश इंक्लूड लगा के हम बोलते हैं कंपाइलर को कि प्लीज इस इन इन दोनों हेडर फाइल में जो जो प्री डिफाइंड फंक्शंस है वो हमारे कोड में हमको चाहिए, तो प्लीज वो सब एक्सेस करके रखो ताकि हम जब यूज करें वो फंक्शन, इट कैन बी इट so that those functions can be used। So coming to line 4, so it's we can see a character type array, right? So it has been initial, देखो इसमें कुछ डेटा हमने दिया है, we have initialized it with Deepika, right? So it's the initialized data, right? लाइन 6 में देखो, सो इट्स द कांस्टेंट कैर s2, सो ये भी एक कैरेक्टर एरे है। सो इसको भी वी हैव इनिशियलाइज दिस एरे आल्सो विद अनदर डेटा दैट इज रणबीर, करेक्ट? सो फर्स्ट line 4 के जो character array है, so there we have initialized with Deepika, and line 6 the character array we have initialized it with Ranveer। but difference क्या है, line 6 में we have use this constant word, right? constant character। इसका मतलब क्या है, हम लोग S1 array की वैल्यू को we can change the value, right? But when we have used this constant keyword before this array, right, so we cannot change the value of the array। तो ये ना हमने जो पढ़ा था कि हमारे फिर से डेटा सेगमेंट में दो, एक रीड ओनली एक रीड राइट। तो जब हम कांस्टेंट कीवर्ड हम जब लगा रहे हैं तो इट गेट स्टोर्ड इन द ओनली रीड ओनली, मतलब रणबीर को हम चेंज नहीं कर सकते, पर उनकी गर्लफ्रेंड्स जो है दीपिका, आलिया, तो एक के बाद एक वो चेंज होती रहते हैं। तो यही है, तो जब हम कांस्टेंट कीवर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब इस एरे के अंदर जो वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं उसको हम चेंज नहीं कर सकते। बट व्हेन वी आर सिंपली यूजिंग दिस कैरेक्टर स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे, देन वी कैन अपडेट द वैल्यू, हम इसको अलग अलग वैल्यू से अपडेट कर सकते हैं, करेक्ट? सो इट इज इन द रीड राइट एरिया ऑफ द डेटा सेगमेंट। नेक्स्ट कमिंग, तो अब तो ये अच्छा, तो लाइन 4 में भी जो हम अरे डिक्लेयर किए हैं, लाइन 6 में भी जो अरे डिक्लेयर किए हैं, क्योंकि ये दोनों इनिशियलाइज्ड है वैल्यू के साथ, तो दे विल सिट इन द इनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट, राइट? और आप एक चीज भी देखो, दिस हैज बीन डिक्लेयर्ड आउटसाइड आवर मेन फंक्शन। जब हम मेन के बाहर जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उनको हम लोग ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। दैट इज जो ग्लोबल वेरिएबल्स, मतलब ये मेन फंक्शन या आप कोई भी फंक्शन पकड़ लो, वो फंक्शन खत्म होने के बाद भी ये वेरिएबल्स, द वैल्यूज विल बी देयर इन दिस वेरिएबल, मतलब ये वेरिएबल्स में वैल्यूज रहेगा। इसको कोई मतलब नहीं है फंक्शन
खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका वैल्यू रहेगा, मेमोरी से इरेज नहीं होगा. So line number 10, so here we have this int main, right? Line 11 में हम लोग int n लिखे हैं. So int n again, so it's a local variable. So again, where will this local variable be stored? तो ये local variable gets stored in our stack segment. हमने पढ़ा था सारे local variables जो होते हैं वो स्टैक सेगमेंट में स्टोर हो जाता है, पर हमारे जो ग्लोबल, जो कांस्टेंट, जो एक्सटर्न वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमारे डेटा सेगमेंट में स्टोर होते हैं. कमिंग टू लाइन नंबर 12, लाइन नंबर 12 को देखो. सो इट इज ऑल्दो इनसाइड द मेन फंक्शन, पर हमने एक कीवर्ड स्टैटिक यूज किया है. इसका मतलब जब हम कीवर्ड स्टैटिक यूज कर रहे हैं, ये भी एक ग्लोबल ये भी एक अपना डेटा सेगमेंट में जाके बैठ रहे हैं, बिकॉज इसका भी ये फंक्शन खत्म हो जाए फिर भी इसका वैल्यू इरेज ऑफ नहीं होता है. करेक्ट. सो it also goes and sits in our data segment, and as the value, as we are we are initializing int a with value 22, so it is in initialized data segment. सेम लाइन 13 में भी हम एक कांस्टेंट कीवर्ड यूज कर रहे हैं, वेयर int b is been initialized with the value 44, so it also goes and occupies initialized data segment. data segment में जो initialized data segment है उसमें जाके ये दो वेरिएबल्स बैठ जाते हैं, उस वो वाले मेमोरी ये दो वेरिएबल्स ऑक्युपाई कर लेते हैं. नेक्स्ट लाइन 14 और 15 में हमने एक कैरेक्टर पॉइंटर डिक्लेयर किया है. सो लाइन 14 ये होता है पॉइंटर डिक्लेयर करने का सिंटैक्स, एंड लाइन 15 में इस पॉइंटर को हमने डायनामिकली मेमोरी एलोकेट किया है. देखो डायनामिक मेमोरी एलोकेट करने के लिए हम लोग कुछ कुछ फंक्शंस को यूज करते हैं, जैसे अपना मैलॉक, कैलॉक, रीअलॉक. ठीक है. तो ये सारे फंक्शंस दीज हेल्प्स टू डायनामिकली एलोकेट मेमोरी. हमने सीखा था कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, जिसमें हम लोग रन टाइम में मेमोरी एलोकेट करते हैं, मतलब ट्रेन में चढ़ने के बाद हम लोग सीट रिजर्व करते हैं. सो as we have discussed, so as it is dynamic memory allocation, so it will sit in our heap segment, right? And again line 16, it is a printf, it's again a printf function. So again a function, so it also sits in the stack segment. हम लोग ये भी डिटेल्स में पढ़ेंगे कि फंक्शंस भी स्टैक सेगमेंट में क्यों होता है, फंक्शंस के कौन से वाले पार्ट स्टैक सेगमेंट में जाते हैं, तो ये भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे पर नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स के बाद. एंड एट द एंड वी आर रिटर्निंग 0, मीन्स हमारा मेन खत्म हो गया. ओके, सो मूविंग ऑन. ओके, सो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस है जो हम अपने प्रीवियस स्लाइड्स के कोड में यूज किए हैं. वी हैव यूज्ड दिस हैश इंक्लूड. आपको अगर याद हो तो हम लोग ये हैश इंक्लूड यूज किए थे. सो दीज हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन, हैश इफ डेफ, ये सब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बोला जाता है. सो दीज आर द कमांड्स दैट द प्रोसेसर हैंडल्स बिफोर द एक्चुअल कंपाइलेशन ऑफ द कोड बिगिंस. मतलब प्रोसेसर पहले ही उनको हैंडल कर लेते हैं. ठीक है. एंड others that control the inclusion of the file, macros, macro definition and conditional compilation. मतलब जब हम हैश इंक्लूड लिखते हैं प्रोसेसर को समझ में आ जाता है कि हैश इंक्लूड के बाद जो हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे उस हेडर फाइल में डिफाइंड हर कोई फंक्शंस को पहले से ही रेडी रखे, क्योंकि कोड उस सारे फंक्शंस को यूज करेंगे. ठीक है. सो this standard library function, so the printf, scanf are part of the C standard library and they are defined in stdio.h header file. ठीक है. ये बहुत ही एक कॉमन हेडर फाइल है, stdio.h, stdlib.h, ये सब हमारे बहुत ज्यादा कॉमन सी में हेडर फाइल्स है. बट आप जब कोई प्रोजेक्ट में काम करते हो तो यू ऑल्सो सम लाइक मेनी अ टाइम्स आपको अपने से हेडर फाइल, आपको खुद वहां पे जाके खुद फंक्शंस डिफाइन करना पड़ता है जो आप हेडर फाइल में आप
आपके हिसाब से आप हेडर फाइल खुद क्रिएट करते हो और फिर एक डॉट सी फाइल में उन हेडर फाइल में डिफाइंड फंक्शंस को आप यूज करते हो. बट these two header files which I am mentioning in this slides, these are already predefined. Everyone like these are not user defined, these are predefined, already ये defined है. करेक्ट. तो stdio.h में दो मेन जो used function से, एक होता है हमारा printf and the second one is our scanf. So these are stored in this stdio.h. while malloc जो हम डायनामिक मेमोरी एलोकेट के लिए सबसे ज्यादा यूज करते हैं, that is stored in the header file called stdlib.h, right? So again, there is a note. What is the note? The main function itself is not stored in the stack. It is stored in the text segment, also known as the code segment of the memory. The main function itself along with other function is stored in the text segment. तो ये गलती हम लोग नहीं करेंगे. हम लोग कभी भी नहीं सोचेंगे कि मेन फंक्शन अपने स्टैक में स्टोर हो गया. नहीं, मेन फंक्शन हमेशा, और कोई भी फंक्शन आप पकड़ लो, कोई भी फंक्शन, सारे फंक्शन हमारे स्टैक्स, हमारे टेक्स्ट वाले जो बॉटम मोस्ट सेगमेंट है, इन दैट प्लेस इट गेट स्टोर्ड. सो द नेक्स्ट स्लाइड विल मेक दिस पॉइंट मोर क्लियर. ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. So let's understand stack क्या करते हैं. So the stack during execution, when a function like main is called, a stack frame is created on the stack for that function. अब stack frames includes return address, the address to return to once the function completes. Correct. हम लोग जब return कीवर्ड यूज करते हैं ना, तो वो एक एक्चुअली हम एक एड्रेस देते हैं. तो यही रिटर्न एड्रेस, तो हम लोग जब रिटर्न कुछ जीरो या कुछ भी, हम लोग जब रिटर्न कीवर्ड यूज करते हैं, वो एक्चुअली में एक एड्रेस देते हैं कि कहाँ पे वो फंक्शन एंड हो रहा है. तो ये रिटर्न एड्रेस स्टोर हो जाता है स्टैक फ्रेम में एक फंक्शन का, राइट. And the second, what gets stored? The function parameter. So the local copy of the arguments passed to the functions, right? Functions parameter क्या होते हैं? हम लोग जो आर्ग्यूमेंट, जब हम फंक्शन कॉल, हम अब जब हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं या कॉल करते हैं, तो हम लोग कुछ उसके साथ, फंक्शन के साथ फंक्शन पैरामीटर भेजते हैं. तो वो जो लोकल कॉपी, उस पैरामीटर्स के जो लोकल कॉपी, पैरामीटर्स बोलो कि आर्ग्यूमेंट्स बोलो, उसके जो लोकल कॉपी होता है, तो वो भी स्टोर हो जाता है हमारे स्टैक में. एंड लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द लोकल वेरिएबल्स, वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन, दे आर गेट ऑल्सो, वो लोग भी स्टैक वाले मेमोरी को ही ऑक्युपाई करते हैं. सो द स्टैक इज यूज्ड फॉर मैनेजिंग फंक्शन कॉल एंड लोकल वेरिएबल्स, बट does not store the actual machine code of the function. Instead, it supports the function execution by maintaining the state and context for each function call. तो हमारे जो फंक्शन है मेन, या आप कोई भी अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन, ऐड, सब्ट्रैक्ट, जो भी फंक्शंस है ना, तो वो फंक्शंस हमको कभी ये गलती से नहीं सोचना है कि वो फंक्शंस भी स्टैक में स्टोर हो गया. नहीं, फंक्शंस के रिटर्न एड्रेस जाते हैं स्टैक में, बट फंक्शंस जो है वो हमारे स्टोर होता है टेक्स्ट सेगमेंट में, राइट. ओके, सो मूविंग ऑन. अच्छा, तो अब हम लोग क्योंकि हीप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है समझना डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, राइट, जिसको हम डीएमए बोलते हैं. तो वील जस्ट ब्रश अप द कंसेप्ट्स ऑफ डीएम, राइट. तो memory allocation is the process of reserving the virtual or computers or physical computer space for a स्पेसिफिक पर्पस. मतलब हम लोग एक मेमोरी एलोकेट करना, मतलब क्या, हम अपने प्रोसेसर में, अपने कंप्यूटर में एक स्पेस हम अपने लिए हटा के रख दे रहे कि अरे मुझको ये जरूरत है. दैट इज वी आर अलोकेटिंग द मेमोरी, right? So this memory allocation is done either before or the time of program execution. Thus, there are two types of memory allocation. Either जब program, so before the program is executed,
और ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग इज एग्जीक्यूटेड। तो दो टाइप के मेमोरी एलोकेशन होता है, एक होता है हमारा स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, दूसरा हमारा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। static memory allocation. In static memory allocation, whenever the program executes, it fixes the size, fixes the size that the program is going to take, and it can't be changed further. So the exact memory requirements must be known before. तो हम लोग जब स्टैटिकली कुछ मेमोरी एलोकेट करते हैं तो पहले से ही, मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के पहले से ही वो बोलते थे, अरे भाई मुझे तो इतना मेमोरी चाहिए, ये मेमोरी मेरे लिए हटा के रखो, जब मैं एग्जीक्यूट होंगी मुझे पहले से ही ये मेमोरी चाहिए। सो दैट इज द स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। सो बिफोर हैंड वी आर रिजर्विंग, बिफोर इवन एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम वी आर रिजर्विंग द स्पेस इन द, वो मेमोरी में वो स्पेस रिजर्व करके हम लोग रख रहे हैं। Okay, so understanding the static memory through a code, right? तो यहाँ पे जैसे it's a simple code, तो देखो int n, so it's a integer type variable जो 4 बाइट ले रहा है। देन कैर सी, ये भी 1 बाइट ले रहा है, ठीक है। तो ये जैसे इंट अरे 20, तो इसमें क्या है, 20 मेंबर्स है, अरे में 20 मेंबर्स है, और अरे किस डेटा टाइप के हैं, अरे इंटीजर डेटा टाइप के हैं। तो टोटल ये 80 बाइट्स ऑफ मेमोरी, 80 बाइट्स ऑफ मेमोरी बोल रहे हैं कि रिजर्व कर लो। जब हम ये लाइन नंबर 7 वाला जो लाइन है ना, जब हम इंट अरे 20 लिखते हैं तो हम लोग पहले से ही मतलब हम लोग पहले से ही ये बोल देते हैं, भाई मेरे लिए 80 बाइट्स ऑफ मेमोरी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने से पहले ही रिजर्व कर दो, ठीक है, पहले ही मुझे चाहिए ही चाहिए ये। नेक्स्ट कम्स कैरेक्टर स्ट्रिंग, कैरेक्टर str20, मतलब ये एक कैरेक्टर टाइप एरे है, क्योंकि कैरेक्टर डेटा टाइप ऑक्युपाइज 1 बाइट एंड दिस एरे हैज 20 मेंबर्स इन इट, तो टोटल इनको 20 बाइट्स लग रहे हैं। तो जैसे लाइन 5, लाइन 6, 7, 8, ये सारे लाइंस में जो वेरिएबल्स हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं ना, वो पहले से ही बता दे रहे हैं कि भाई हमारे लिए इतना इतना मेमोरी ऑलरेडी सेव कर रखो एग्जीक्यूट होने से पहले ही, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, कि पहले से ही उठा के रख दो, फिर तुम कंपाइल हो, फिर तुम मतलब प्रोग्राम कंपाइल हो। नेक्स्ट, okay, so here so this is an explanation of the stack segment through a code, right? So यहाँ पे क्या किया जा रहा है, फर्स्ट देखो लाइन 3 में, वी हैव व्हाट वी हैव डिक्लेयर्ड अ फंक्शन ऐड, हमने एक ऐड फंक्शन डिक्लेयर किया है। अब हम इंट मेन, लाइन 4 में हम इंट मेन के अंदर आ रहे हैं। तो लाइन इंट मेन के अंदर हम देख रहे हैं कि add function has been called। तो देखो इनिशियली व्हेन द इंट मेन स्टार्ट ना, तो स्टैक में एक मेमोरी एलोकेट कर देता है कि इंट मेन के अंदर जो जो फंक्शंस होंगे तो उसके लिए एक मेमोरी एलोकेट, द बॉटम मोस्ट जो मेमोरी जो सेगमेंट हम देख रहे हैं ना, तो इनिशियली दिस सेगमेंट ओनली एग्जिस्ट, बट व्हेन दिस ऐड फंक्शन इज बीइंग कॉल्ड, तो तब हम लोग फिर से और एक ब्लॉक मेमोरी ऐड कर लेते हैं, कि एक ऐड फंक्शन बोल के भी एक और एक फंक्शन है जिसके लिए स्टैक में हमको स्पेस चाहिए। फिर add function, so again in this add function, the control, when this add function is called, the control will go inside the add function, right? So line 8 में add function described है कि वो क्या कर रहा है। so add function के अंदर हम लोग फिर से देख रहे हैं और एक फंक्शन printf, और एक फंक्शन को कॉल किया गया है। तो फिर से add से भी और एक, मतलब और एक मेमोरी ब्लॉक, मतलब फ्रॉम ऐड और एक मेमोरी ब्लॉक या मेमोरी ब्लॉक एलोकेट किया जाएगा जिसका printf, जो printf फंक्शन के लिए। नाउ एज सून एज दिस printf फंक्शन एंड्स, ये मेमोरी ब्लॉक को ये मेमोरी को रिलीज कर देगा। मतलब as soon as this function completes, so it will reverse back, मतलब ये मेमोरी मतलब एलिमिनेटेड हो जाएगा, मतलब ये फ्री अप हो जाएगा
फंक्शन खत्म, फंक्शन के अंदर प्रिंटफ कुछ डिस्प्ले कर दिए, फिर उसके बाद ये वाला मेमोरी इरेज्ड ऑफ बोलो या फ्री कर देना, जो भी है, तो ये फ्री अप हो जाएगा। फिर ऐड फंक्शन, देन इट कम्स टू दिस ऐड फंक्शन, और ऐड फंक्शन के अंदर देखो फिर से कुछ कुछ फिर से स्कैन एफ फंक्शन, लाइक अगेन द स्कैन एफ फंक्शन इज कॉल्ड, सो अगेन फिर से ऐड फंक्शन से फिर से ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐड फंक्शन से फिर से ऊपर जाएगा, ठीक है, जब फिर वो स्कैन एफ एग्जीक्यूट करेगा, फिर ऐसे जब ये पूरा, फिर उस ऐड फंक्शन जब खत्म हो जाएगा, व्हेन इट एनकाउंटर्स द रिटर्न, so what happens, so this add function when it completes its execution, this memory will also release, like ये memory भी release हो जाएगा, पर तभी होगा जब ये रिटर्न जीरो एनकाउंटर करेगा, दैट इज व्हेन द होल फंक्शन हैज कंप्लीटेड इट एग्जीक्यूशन, ऐड फंक्शन जब पूरा कंप्लीट हो एग्जीक्यूट करना कंप्लीट हो जाएगा, दिस मेमोरी स्पेस विल आल्सो बी रिलीज एंड द कंट्रोल विल कम बैक टू आवर मेन, और उसके बाद जब मेन में रिटर्न जीरो आ जाएगा, तो एट द एंड दैट टाइम ये मेन वाला, जब मेन वाला स्पेस भी रिलीज हो जाएगा, मेन भी जो मेमोरी स्पेस ले रहे हैं वो भी रिलीज हो जा रहा है, ठीक है। तो यही है कंसेप्ट ऑफ स्टैक। तो स्टैक keeps on increasing and as well as decreasing. When it increases, when one function is called inside another function, एक function के अंदर एक दूसरा function कॉल कर रहे हैं, जैसे इस एग्जाम्पल में हम लोग int main के अंदर add को कॉल किए, तो ये क्या हो रहा है, स्टैक मेमोरी इंक्रीज कर रहे हैं, करेक्ट। फिर हम ऐड फंक्शन के अंदर फिर से और एक दूसरा फंक्शन, फिर अगेन दिस printf function has been called, तो और भी मेमोरी इंक्रीज कर जा रहे हैं, तो द स्टैक is growing upward, but once the function is done with its execution, the stack memory grows downwards. एक बार printf का काम हो गया तो stack memory नीचे चला, मतलब it comes downwards, means it keeps on releasing the memory space, ठीक है। So this is a example through which we can understand what the stack segment is, कैसे ये काम करते हैं, ये like we can get an idea of what it is. So moving on, okay, so हाँ, so अच्छा, अब आ जाता है dynamic memory allocation, right? So when the allocation of the memory performed at compile time, तो हमारे when the allocation of the memory is performed at the compile time, then it is known as the static memory, right? But when the memory allocation is done at the execution or the run time, then it is called the dynamic memory. आप वो ट्रेन वाले एग्जाम्पल से इसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए, मे बी दिस थिंग विल बिकम क्लियर, राइट। तो हम वही बोले थे, जब हमारे पास टिकट है, वी आर ऑलरेडी रिजर्विंग द स्पेस, दैट इज आवर स्टैटिक मेमोरी, और जब हमारे पास टिकट नहीं है, हम डायनामिकली सीट रिजर्व कर रहे हैं, दैट इज आवर डायनामिक मेमोरी, राइट। सो ये कंपाइल टाइम और रन टाइम, ये दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, बट आई होप लाइक कुछ आइडिया है आपको कंपाइल टाइम रन टाइम के ऊपर, राइट। सो अगेन दिस फंक्शंस Calloc एंड द Malloc सपोर्ट एलोकेटिंग डायनामिक मेमोरी, ठीक है। ये दो मेन फंक्शंस होता है, Calloc Malloc, और रीअलोक भी और एक फंक्शन होता है, बट हम लोग मेनली अपने कोड में Malloc ज्यादा यूज करते हैं, right? So in dynamic allocation of the memory, space is allocated by using these functions when the value is returned by the function and assigned to a pointer variable, ठीक है। तो ये फंक्शंस कैसे काम कर रहा है, ये भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कैसे मैलॉक कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, ठीक है। बट दिस इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग कि एक बेसिक डेफिनेशन क्या है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का, ठीक है। सो व्हेन वी सेंड आवर प्रोग्राम टू रन, इट फर्स्ट कंपाइल देन इट रन्स, राइट। तो जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप इज कंपाइलिंग, सेकेंड स्टेप इज रन। इन कंपाइलेशन प्रोसेस वी हैव स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, and during running the program, the memory that gets allocated, memory gets allocated
डायनामिकली, राइट। सो वही कि कंपाइलेशन के टाइम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन हो रहा है, और और रन टाइम के टाइम डायनामिकली मेमोरी एलोकेट हो रहा है, करेक्ट। पर हमको हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट कंपाइलेशन प्रोसेस होता है, उसके बाद ही रन द प्रोग्राम रन। सो द फर्स्ट इज कंपाइलिंग, देन इट्स रन। सो ओके, so there are four library functions provided by C under stdlib.h, right? So uh, which facilitates the dynamic memory allocation. तो ये चार functions क्या है? malloc, calloc, pre and realloc. तो ये चार functions pre-defined है किस header file के अंदर? stdlib.h, right? ओके, ओके। तो अब हम एक छोटा सा लाइक दिस कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे, लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब आप प्रोजेक्ट में काम करते हो। सो और दो टर्म्स बहुत कंफ्यूजिंग भी है, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट क्लियर आउट दिस थिंग। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलिंग एंड रनिंग अ प्रोग्राम, राइट? So compiling is the process of converting source code written in a high level language like C++, Java, C आप पकड़ लो, into machine code. Machine code हमेशा binary code होता है that the computer's processor can execute, right? So the machine code is typically in the form of executable file or a set of binary files. तो कंपाइलर कुछ नहीं करते, हमारे जो हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग हमेशा कोड लिखते हैं, जैसे C++ या आप कोई भी लैंग्वेज पकड़ लो, उसको मशीन ताकि अंडरस्टैंड कर पाए उसके लिए इट कन्वर्ट्स इट्स टू अ मशीन कोड, राइट, विच आर ऑल्सो नोन एज बाइनरी कोड। तो वो लाइक एट द एंड जब जब कोड कंपाइल्ड होता है ना, तो वो एट द एंड बाइनरी फाइल्स जनरेट करते हैं। बाइनरी फाइल्स मतलब क्या है? हमारा पूरा कोड इट हैज बीन कन्वर्टेड टू मशीन कोड मतलब हम जो सी में लिखे हैं वो पूरा ट्रांसलेट होके मशीन कोड में चेंज हो गया। सो ड्यूरिंग द कंपाइलेशन अ कंपाइलर रीड्स द सोर्स कोड, analyze it and translate it into a low level language, usually assembly or machine code. The compiler checks for syntax error and other issues in the code before generating the executable file, right? तो हम लोग सुने हैं कि compilation error बोलते हैं, तो ये basically syntax error जो होता है, मतलब ये बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है पर वो देख रहा है कि कहाँ कहीं पे सिंटैक्स एरर है, तो इसीलिए वो हाई लेवल कोड को मशीन लेवल कोड में नहीं कन्वर्ट कर रहा है। तभी हम लोग एनकाउंटर करते हैं कंपाइलेशन एरर, राइट? So it takes care of this compilation process. And what is the output of the compilation process? The output of the compilation process is usually a executable file और a set of objects file. इसको हम लोग binary files भी बोलते हैं, ठीक है? So the file contains the machine code that can be run by the computer. मतलब कंपाइलर क्या कर रहा है? एक डिफिकल्ट हाई लेवल लैंग्वेज को वो इजी टू अंडरस्टैंड, जो इजी मतलब जो मशीन को इजी लगे अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि मशीन ज्यादातर 1 और 0 ही समझते हैं, तो इसीलिए कंपाइलर कन्वर्ट्स दैट हाई लेवल। बट हम जैसे ह्यूमंस हैं, हमको वो 1 और 0 नहीं समझ में आएगा, हमको तो हाई लेवल लैंग्वेज समझ में आता है, लाइक वी अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट्स वी आर राइटिंग। So we write the code in high level language, but the compiler translate that high level language program into machine के लिए जो understandable form है, that is binary code या machine code, राइट? सो अगेन तो ये कंपाइलेशन, अगर हम कोई फाइल कंपाइल करना चाहते हैं तो उसका सिंटैक्स होता है जीसीसी। जैसे मुझे कोई फाइल नेम है ये मेमोरी डॉट सी, और फिर हम देते हैं ./a.exe। तो इसका मतलब, इस सिंटैक्स का मतलब यही बोलते हैं कि जीसीसी जो है वो वही हमारे कंपाइलर है, द कंपाइलर। सो दिस इज दिस जीएनयू कंपाइलर विच इज द वाइडली यूज्ड कंपाइलर फॉर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है? तो हम इस कंपाइलर को बोल रहे हैं कि ये वाले जो फाइल .c फाइल है उसको तुम बाइनरी फाइल में
बाइनरी फाइल में तुम कन्वर्ट करो, राइट? सो ये a.exe, सो दिस इज द नेम ऑफ द एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रोड्यूस्ड बाय द जीसीसी। तो हमने इतने देर तक पढ़ा कि कंपाइलर एक हाई लेवल सी कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। तो बाइनरी कोड वाला जो फाइल होता है ना, वही हो जाता है अपना एग्जीक्यूटेबल फाइल, राइट? So this thing, it the like by giving this command we are telling कि compiler जाके ये memory.c वाला जो फाइल है उसको बाइनरी फाइल्स में कन्वर्ट करो ताकि मशीन उसको फर्दर एग्जीक्यूट कर पाए। नेक्स्ट कमिंग टू रनिंग, सो okay, so running a program involves executing the machine code, right? So this is the actual use of the software where it interacts with the operating system and the hardware to execute its goal. मतलब हम जो टास्क करवाना चाहते हैं कोड लिख के, तो वो टास्क इस रन प्रोसेस में एग्जीक्यूट होता है। When you run a program, the operating system loads the executable file into memory, sets up the necessary execution environment and starts executing the instruction contained in the machine code। मतलब जो हमारा जो मशीन कोड वाला कन्वर्टेड जो फाइल निकला आया था, कंपाइलर ने जो हमको बाइनरी फाइल दिया था, तो वो बाइनरी फाइल में जो जो इंस्ट्रक्शंस है, तो दैट कीप्स ऑन एग्जीक्यूटिंग the and what is the output of this run process? The output of the running a program is the execution of the programs logic। हम लोग प्रोग्राम में जो लॉजिक लिखते हैं वो एग्जीक्यूटेड होता है, ठीक है? सो दिस माइट बी डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स ऑन द स्क्रीन, modifying files or interacting with other systems, right? Okay. Okay, so like till now we understood like what is the running process, what is compilation process। So these all हम क्यों समझने का कोशिश कर रहे थे, so that we can understand better what is our dynamic memory allocation और static memory allocation, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग ये कंपाइल टाइम, रन टाइम, इसका कंसेप्ट हम लोग थोड़े रिकलेक्ट कर रहे थे। Now coming to the one second. So now coming to the most important functions, जब हम लोग dynamically memory allocate कर रहे हैं, तो जो most important function that is malloc। तो आप नाम से ही समझ सकते हो, जैसे malloc as the name is, so M stands for memory and alloc stands for allocation, right? So malloc नाम इसीलिए दिया गया है, it's just memory allocation। So the malloc in C is used to dynamically allocate a single large block of memory with specified size, right? तो ये क्या कर रहे हैं, डायनामिकली दे आर अलोकेटिंग अ लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी, ठीक है, जो एक स्पेसिफाइड साइज का भी है। It returns a pointer of type void which can be casted into pointer of any form। तो ये हमको याद रखना है, जब भी हम डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं हम malloc फंक्शन के थ्रू, द malloc itself returns a void pointer, वो हमको एक void pointer दे देता है। सो इट्स पर हमको उसको इसीलिए वी हैव टू टाइप कास्ट इट, हमको पॉइंटर को टाइप कर, जैसे इस लाइन में दिखाया गया है कि दिस फंक्शन ये पॉइंटर को टाइप कास्ट किया गया है इंट टाइप में, राइट? क्यों किया गया है? क्योंकि हम ये जो ब्लॉक जो डायनामिकली एलोकेट कर रहे हैं ना, हम इसमें इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल को, इंटीजर वैल्यू हम लोग स्टोर करना चाहते हैं। तो क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, तो इस मेमोरी ब्लॉक को भी जो पॉइंटर द पॉइंटर दैट विल point to this memory block should also be integer type, ठीक है? So as it says, so this is a 20 byte of memory, a large 20 byte memory block is dynamically allocated to the pointer। अब जैसे yeah so again, so it doesn't initialize the memory at execution time। uh, Okay, so if we don't initialize the memory at the execution time, um, एक second,
अच्छा, नहीं नहीं, हाँ, तो ये जो मेलॉक होता है वो खुद से मेमोरी को इनिशियलाइज नहीं करते, सो दैट्स व्हाई बाय डिफॉल्ट इसमें गार्बेज वैल्यू स्टोर होता है। अब हम इसमें कुछ मेमोरी में कुछ स्टोर करें वो अलग बात है, पर अगर आप सिर्फ इस मेमोरी को अलोकेट कर दिए पर इसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं किए, तो ये खुद ब खुद इनिशियलाइज हो जाता है गार्बेज वैल्यू से। ठीक है, ओके। एंड दिस अगेन दिस ये जो सिंटैक्स है, तो ये मेलॉक के अंदर क्या हो रहा है देखो। सो वी हैव दिस फाइव, ये फाइव डिनोट करते हैं कि पांच हम इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल्स हम लोग चाहते हैं। ये जो मेमोरी एलोकेट किया गया है ना, तो इसमें हम पांच इंटीजर वेरिएबल्स को स्टोर करेंगे। एंड वी हैव देन द साइज ऑफ इंट, सो हम लोग को इंटीजर स्टोर करना है, तो वी विल ऑल्सो टेक लाइक राइट द साइज ऑफ इंट, मतलब 5 into the size of int is 4 bytes, राइट। इन हर इंटीजर डेटा टाइप 4 बाइट ऑक्युपाई करता है। तो टोटल मेलॉक इस पांच इंटीजर डेटा को स्टोर करवाने के लिए टोटल 5 into 4, दैट इज 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी एलोकेट करेगा। और ये पॉइंटर क्या करेगा, ये जो 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी जो एलोकेट किया, उसके जो बेस एड्रेस होता है, तो ये तो एक कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी है, पर इसका एक बेस एड्रेस होता है, वो बेस एड्रेस को पॉइंट करेगा हमारा ये पीटीआर जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, ओके। So next, like we'll try to understand again, हम लोग malloc को भी समझने की कोशिश करेंगे through a code, right? So एक सेकेंड। Okay, so we'll try to understand the malloc concept of malloc again through a code, right? सो यहाँ पे भी हम लोग अगर इंट, अच्छा, तो ये सारे कोड्स मैंने ऑनलाइन कंपाइलर, जो सी कंपाइलर होते हैं ना, तो वहां पे ही मैंने लिखा है, और लाइक आई हैव आल्सो पुट द आउटपुट ऑफ दिस कोड जस्ट फॉर रेफरेंस, राइट। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो यहाँ पे भी हम लोग जैसे लाइन नंबर 8 पे हम लोग देख पा रहे हैं कि अ इंटीजर टाइप पॉइंटर हैज बीन डिक्लेयर्ड। ठीक है, और लाइन नंबर 9 में वी आर अलोकेटिंग मेमोरी for this, we are dynamically allocating memory by using this malloc function, right? So the ptr will save the base address of the memory block, right? तो हमने देखा था कि बेस एड्रेस क्या होता है। बेस एड्रेस होता है कि हमारे जो फर्स्ट बाइट है उसका जो एड्रेस है, द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द होल कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी, उसको ही हम बेस एड्रेस बोलते हैं, राइट। So this is line 9. So it dynamically allocates the memory, right? Again, line 11 and 12. So here हम लोग ने pointer arithmetic किया है. So what, like, I hope like you guys are acquainted with the pointer arithmetic. Like what it does, तो हम लोग इसमें हर address में value, we are assigning value, right? So I'll share a just ओके। सो इससे हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं पॉइंटर अरिथमेटिक को। सो द पॉइंटर अरिथमेटिक, सो हियर द पीटीआर प्लस आई लिखा गया है, ठीक है। अब आई है इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल, तो हमको पता है इंटीजर वेरिएबल 4 बाइट, वन इंटीजर वेरिएबल ऑक्युपाइज 4 बाइट। तो जब हम ये लाइन 12 में जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है पीटीआर प्लस आई, पीटीआर तो अपना बेस एड्रेस स्टोर कर रहा है, हमने लाइन 9 में ही इसको बोल दिया है कि भाई तुम एक बेस एड्रेस स्टोर करो, ये जो कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक है इसका बेस एड्रेस स्टोर करो। पर ये वाला लाइन पीटीआर प्लस आई का वैल्यू, आई, इफ आई वैल्यू इज 1, इट मीन इंटीजर, वन इंटीजर मीन्स 4 बाइट। तो एक्चुअल में ये कौन से वाले एड्रेस हो जाएगा, जैसे अगर हम पकड़ ले कि पीटीआर लाइक इट होल्ड्स द वैल्यू 1000, राइट। तो ये बेस एड्रेस हमारा 1000 है, प्लस आई 1 है, आई का वैल्यू 1 है, बट व्हाट इट एक्चुअली मीन्स पीटीआर प्लस 1
in terms like PTR plus 1 means PTR plus 1 integer means PTR plus 4 bytes. So 1000 plus 4 which is 1004. तो जब हम PTR plus 1 लिखते हैं उसका मतलब we are pointing to the address 1004. सिमिलरली जब हम PTR plus 2 लिखते हैं उसका मतलब इंटीजर मतलब दो इंटीजर हम लोग स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं मतलब PTR 1000 प्लस 2 into 4 मतलब 1008 एड्रेस को हम लोग पॉइंट कर रहे हैं उस पॉइंटर से। करेक्ट। सो और एक चीज जैसे लेफ्ट मोस्ट में हमने एक डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज किया है तो ये क्या कर रहा है कि उस वाल जो वो जो एड्रेस है जैसे हम लोग 1000 बोले फिर उसके बाद हम 1004 बोल रहे हैं फिर 1008 बोल रहे हैं तो वो एड्रेस में जाके वो वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेगा मतलब उस एड्रेस में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है वो वाले वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करेंगे। पर इधर हम लोग एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे इधर हम लोग वैल्यू असाइन कर रहे करेक्ट। सो डी सो जैसे हम लोग 1000 एड्रेस है ठीक है जैसे अब हमारा आई इज इक्वल टू 0 तो हमारा ये पीटीआर मतलब 1000 1000 इज इक्वल टू मतलब 0 तो 1000 वाले एड्रेस में हमारा 0 वैल्यू स्टोर हो जा रहा है ठीक है। 1000 वाले जो एड्रेस ब्लॉक है मतलब वो जो ब्लॉक जिसका एड्रेस 1000 है उस वाले ब्लॉक में वैल्यू 0। सिमिलरली अगर हम पीटीआर प्लस 1 करें और फिर हम डी रेफरेंस ऑपरेटर ये वाले ऑपरेशन करें मतलब पीटीआर 1000 प्लस 4 बाइट्स मतलब 1004 वाले जो एड्रेस है सो वो एड्रेस जिस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है वो ब्लॉक का वैल्यू वी आर असाइनिंग इट टू 1 राइट। सो ऐसे हम मल्टीपल एड्रेस में जाके सो एड्रेस में जाके मतलब वो एड्रेस जिस ब्लॉक का है उस वाले ब्लॉक में हम लोग वैल्यू असाइन कर रहे हैं ठीक है। तो यही है हमारा जो पॉइंटर अरिथमेटिक विच वी आर सीइंग ओवर हियर एंड एट द एंड लाइक वी आर आल्सो प्रिंटिंग दोज लाइक ये देखो फिर से हम लोग डी रेफरेंस ऑपरेटर को यूज किया है। हमको याद रखना है कि जब भी ये जैसे एक एड्रेस है पर एड्रेस में जब हम डी रेफरेंस ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है उस एड्रेस में जो वेरिएबल है उसका वैल्यू उस एड्रेस में जो वैल्यू है ठीक है वो एड्रेस कोई मेमोरी ब्लॉक का होगा तो वो मेमोरी ब्लॉक में जो वैल्यू है उसको वो फेच कर रहा है ठीक है। सो दिस इज द यूज ऑफ आवर डी रेफरेंस ऑपरेटर। एंड अगेन लाइन नंबर 18 जैसे हमने डायनामिकली मेमोरी एलोकेट किया है वैसे हमको मेमोरी को फ्री भी करना है क्योंकि हम हमारा टास्क है एज अ एम्बेडेड इंजीनियर हमको ज्यादा से ज्यादा मेमोरी को ऑप्टिमाइज करना है ताकि हम लोग बहुत ज्यादा फंक्शंस एक छोटे से मेमोरी स्पेस में लिख सके। So free PTR. So by this statement, we release our dynamic memory. And at the end, like ये main function return 0 मतलब हमारा function खत्म हो गया। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि we are जैसे एक function के अंदर ही हम लोग dynamically memory allocate भी कर रहे हैं और एक ही उस function के अंदर हम लोग free भी कर रहे हैं। पर ये चीज जैसे ये चीज हम लोग रन टाइम में ही कर रहे हैं मतलब जब प्रोग्राम रन हो रहा है उस टाइम में ही हम लोग एलोकेट कर रहे हैं एज वेल एज फ्री अप कर रहे हैं। तो एक एम्बेडेड इंजीनियर के लिए ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव ही होता है टू ऑप्टिमाइज द मेमोरी राइट ज्यादा से ज्यादा मेमोरी को ऑप्टिमाइज करें। सो नेक्स्ट सो दिस इज अ तो सो देखो if we use array n to store the data value, the array will occupy the memory space in the stack segment, right, of the CPU's RAM for the duration of function execution. इसका मतलब जब तक function execute हो रहा है मतलब हमारा जो int function का जो भी नाम है उस टाइम से जब तक हम रिटर्न 0 एनकाउंटर कर रहे हैं तो वो पूरा टाइम के लिए जो हमारा स्टैक में जो हमारा स्टैटिकली जो अलोकेट किया जो
वेरिएबल्स है, सो इट विल ऑक्यूपाई दैट मेमोरी फॉर द होल टाइम। बट हमने जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा, जब हम डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं तो फंक्शन के बीच हम लोग एलोकेट भी कर रहे हैं एज वेल एज फ्री भी कर रहे हैं। हमको वेट नहीं करना पड़ रहा है, लाइक वी डोंट हैव टू वेट until we encounter this return zero। हम उससे पहले ही, जब भी हमारा यूज खत्म हो जाए वो वाले मेमोरी का, we are freeing up the memory space, right? So the um, सो अगेन, अगर ये स्टैटिक मेमोरी में जो हम लोग अरे अगर डिक्लेयर करें, सो द मेमोरी ऑफ दिस अरे विल बी डी एलोकेटेड वंस द फंक्शन कंप्लीट एंड द रिटर्न स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, राइट? तो जब हम प्रोजेक्ट में काम करते हैं ना, तो एक्चुअल में एक फंक्शन के अंदर बहुत सारे फंक्शंस कॉल रहते हैं। दैट इज, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कोई टास्क हैंडल करने के लिए बुला रहा है, वो फंक्शन इटसेल्फ और कोई दूसरे फंक्शन को जो कोई इंटरप्ट हैंडल करने के लिए बुला रहा है। तो एक्चुअल प्रोजेक्ट में, रियल टाइम प्रोजेक्ट में फंक्शंस बहुत बड़े होते हैं, लाइक इट्स लाइक 1,000 लाइन ऑफ कोड, बिकॉज इन वन फंक्शन देर इज अ फंक्शन कॉल विच अगेंस्ट कॉल्स अनदर एंड दीज गो, लाइक एक फंक्शन के बाद एक फंक्शन कॉल होता रहता है। तो एक्चुअल में बहुत ज्यादा मतलब अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा एग्जीक्यूटेबल कोड होता है। तो अगर हम लोग स्टैक में इस फंक्शन, इस इतने बड़े फंक्शन में अगर हमने स्टैक मेमोरी में कुछ डेटा, कुछ वेरिएबल स्टोर किए, तो इट विल ऑक्यूपाई दैट स्टैक मेमोरी, इट विल थ्रू आउट द फंक्शन, ऑल्दो उसका काम खत्म हो गया पर फिर भी वो उधर ही बैठा रहेगा। पर ये चीज हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हमारे डायनामिक मेमोरी में, मेमोरी एलोकेशन में, कि जब हमको चाहिए तो हम एलोकेट कर रहे हैं फंक्शन के अंदर, और जब हमारा काम खत्म हो गया तभी हम फ्री कर रहे हैं। वी आर नॉट वेटिंग फॉर दैट रिटर्न जीरो टू कम, राइट? सो वी कैन डायनामिकली एलोकेट एज वेल एज फ्री एज पर आवर रिक्वायरमेंट, राइट? So by using malloc and free, we can dynamically allocate memory and free up the memory in between the execution of the program. Okay. सो या सो कमिंग, सो ये हम लोग समझ गए कि मेलॉक क्या होता है, कैसे वो डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं, कैसे वो एडवांटेजियस है। जो मेलॉक के बारे में जानता है तो वो कैसे अपने स्पेस, अपने मेमोरी स्पेस को ऑप्टिमाइज कर सकता है। तो मेलॉक के सिमिलरली और एक फंक्शन होता है कैलॉक, जो ये भी डायनामिक मेमोरी एलोकेट करता है, ठीक है? सो कैलॉक, और को कंटिन्यूअस एलोकेशन भी बोलते हैं, मेथड इन सी इज यूज टू डायनामिकली एलोकेट द specified number of blocks of memory of the specified type. It is very much similar to malloc but has two difference, but दो difference है। What is it? एक हमने पढ़ा था मेलॉक में, अगर हम कुछ वैल्यू से मेमोरी ब्लॉक को इनिशियलाइज ना करें तो इट बाय डिफॉल्ट टेक्स गार्बेज वैल्यू। पर यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम लोग कुछ इनिशियलाइज ना करें तो इट इनिशियलाइज ईच ब्लॉक बाय डिफॉल्ट जीरो। उधर मेलॉक में डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू से इनिशियलाइज होता है, इधर कैलॉक में इनिशियलाइज होता है बाय डिफॉल्ट जीरो से, ठीक है? It has, and also Calloc has two parameters or arguments as compared to Malloc, right? तो हम जैसे इसका सिंटैक्स भी देख सकते हैं। हाँ, तो इसका सिंटैक्स भी देख सकते हैं। तो इसका जो आर्ग्यूमेंट्स लेने का जो वे है, तो वो थोड़ा अलग है अपने मेलॉक से, राइट? सो बट सिमिलर ही है। जैसे यहाँ पे भी एक void पॉइंटर, दिस फंक्शन ऑल्सो रिटर्न्स अ void, राइट? तो यहाँ पे भी हमको टाइपकास्ट करना पड़ता है। एज वी वांट टू स्टोर इंटीजर डेटा inside this continuous block, we will typecast it to int type pointer. If we want to store character data inside this memory block, we'll typecast it to char स्टार पॉइंटर, राइट? तो टाइपकास्ट करना बहुत जरूरी होता है जब हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में बात करते हैं। एंड ऑल्सो एक चीज याद रखना है कि इफ द स्पेस इज इनसफिशिएंट, एलोकेशन फेल्स एंड रिटर्न्स अ नल पॉइंटर। ये मेलॉक के साथ भी होता है कि अगर हमारे मेमोरी में ये
हमको जो स्पेस हमने जो अलोकेट करना चाह रहे हैं, जैसे हम 20 ब्लॉक्स अलोकेट करना चाह रहे हैं, बट मेमोरी में और 20 ब्लॉक्स बचा ही नहीं, मतलब कंटिन्यूअस 20 ब्लॉक्स बचा नहीं, मे बी अलग अलग जगह पे एक एक इधर एक उधर, मतलब अलग अलग, पर कंटिन्यूअस 20 ब्लॉक ऑफ मेमोरी है ही नहीं। तब इस पॉइंटर में ना नल वैल्यू आ जाता है, मतलब ये एक नल पॉइंटर बन जाता है। ये सेम लॉजिक मेलॉक के लिए भी काम करता है। सो मेलॉक में भी अगर वो कंटिन्यूअस 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी उसको ना मिले तो वो भी नल रिटर्न करता है, ठीक है। सो इफ द स्पेस इज इनसफिशिएंट, allocation fails and the returns a null pointer. सो हियर अगेन अगेन एक कोड से हम लोग समझेंगे। ये द कोड इज सिमिलर टू दैट ऑफ मेलॉक, सिर्फ मैंने ये लाइन नंबर 9 पे कुछ अलग लिखा है। दैट इज इंस्टेड ऑफ यूजिंग मेलॉक आई हैव रिटन द कैलॉक, राइट। यहाँ पे हमने कैलॉक फंक्शन यूज किया है और इसका सिंटैक्स भी थोड़ा अलग हो जा रहे हैं, बट दोनों का पर्पस सेम है, ठीक है। सो दिस पीटीआर विल सेव, यहाँ पे भी जो पीटीआर है ये भी वो जो कंटिन्यूअस जो ब्लॉक ऑफ मेमोरी है उसका बेस एड्रेस को स्टोर करेगा। दिस पीटीआर विल सेव द बेस एड्रेस ऑफ द मेमोरी ब्लॉक, ठीक है। एंड अगेन द सेम पॉइंटर एरिथमेटिक इज देयर। सो वहां पे जैसे जैसे और जैसे हमने मेलॉक में एलोकेट करने के बाद हमने जैसे फ्री किया था, यहाँ पे भी लाइन 19 में वी आर फ्रीइंग अप दिस डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी स्पेस, राइट। सो फ्री पीटीआर, तो फ्री, हाँ यही है कैलॉक और मेलॉक के बीच में जो डिफरेंस है। बट मेनली हमारे जो एम्बेडेड में कोड्स लिखा जाता है तो ज्यादातर हमारे मेलॉक फंक्शन ही यूज किया जाता है, ठीक है। ओके, so yeah guys, so that's all for today, and thank you so much for listening patiently to this session. And if you have some feedback, please do send the feedback. I'll be happy to get those feedback. And yes, so thank you guys. Yeah, sure. Thank you. Okay, thank you.